So let's go to today's session. It's called Understanding Epignosis Part 4. हम आज के सत्र में जाएंगे जिसे कहते हैं एपिग्नोसिस की समझ भाग 4। Yeah, this is the last part. From February we start a new series. फरवरी के महीने से हम नई श्रृंखला को जारी रखेंगे और ये हमारा आज का आखिरी भाग है। Understanding Epignosis Part 4. एपिग्नोसिस की समझ भाग 4। Revelation is good, but there is a higher level called epignosis. प्रकाशन ठीक है पर एक ऊंचा आयाम है जिसे हम एपिग्नोसिस कहते हैं। Let's go to Luke 5. हम लूका 5 का एक पढ़ेंगे And let's go a little fast today. और आज थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे। And it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by a certain lake. जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी तो और परमेश्वर का वचन सुनती थी, वह गनसरेत की झील के किनारे पर खड़ा हुआ तो ऐसा हुआ। Verse 2. वचन 2। He saw two ships standing by the lake, but the fishermen were gone out of them, and they were washing their nets. कि उसने झील के किनारे दो नावों को लगी हुई देखी और मछुए उन पर उतरकर जाल धो रहे थे। Verse 3. वचन 3। And he entered into one of the ship, which was his disciple Simon's, and he requested Simon that he would thrust out a little from the land, and he sat down on a boat and taught the people out of the ship. और उन नाव में से एक पर जो शिमोन की थी चढ़कर उसने उसकी विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल, तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। Now verse 4 is important. अभी चौथा वचन जो है महत्वपूर्ण है। Look at verse 4. वचन 4 को देखेंगे। He says, when he had left speaking, he told Simon, launch out into the deep, let down your nets for a catch. जब वे बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। He said, go little deep. उसने कहा गहरे में चल। That's the. He says, go little deep. Don't stay at this level. He said, go little deep. There you will find something. उसने कहा कि तू किनारे पर मत रहे, तू थोड़ा गहरे में जा और वहां तुझे मछलियां मिलेंगी। He said, go little deep. उसने कहा थोड़ा गहरा चल। He said, don't stay at the shallow waters. Go deep. Let's go deep. उसने कहा कि तुम किनारे के स्तर पर मत रहो, थोड़ा गहरे में चलो। When you go into the deep, you will catch something. जब तुम गहरे में जाओगे तुम कुछ पकड़ोगे। That's what epignosis is. यही एपिग्नोसिस है। Epignosis is, let's see the first slide. Epignosis of Jesus is knowing Jesus deeply, so deeply that his life shapes who you are, what you believe, and how you live every day. यीशु के एपिग्नोसिस का अर्थ ये है कि यीशु को इतनी ज्यादा गहराई से जानना कि और अनुभव करना कि उनका जीवन आपकी पहचान, आपके विश्वास और आपके दैनिक जीवन को दिशा दे। See, that's what he's saying. He's saying, go deep. वही कह रहा है कि तुम गहरा जाओ। He said, I know a little bit Jesus. I know what he has done, what he says. He says, no, you're not going to catch much if you know only little. You go deeper in your knowledge of Jesus and many things will manifest. हाँ, मैं यीशु को जानता हूँ, उसने क्या किया है, वो क्या करता है मैं जानता हूँ। नहीं, उससे आप ज्यादा कुछ पकड़ नहीं पाएंगे। जब आप थोड़ा गहराई में जाएंगे तब आप कुछ पकड़ पाएंगे। It's going into the deep waters, knowing what he has done. ये गहरे जलों में जाना है जिसमें आप जाने कि उसने सचमुच क्या किया है। And only serious people go deep. और सिर्फ गंभीर लोग गहराई में जाते हैं। If you're serious about like education, if you're serious about education, you might want to go deep. जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर आप शिक्षण में आपको कुछ आगे करना है, आप उसके बारे में गंभीर, तो आप गहरा जाएंगे। You want to go deep. आप गहरा जाएंगे। Knowing Jesus, unless you go deep in him, certain transformations will not happen in your life. जब तक आप यीशु को जानने में आप गहरा नहीं जाएंगे तब तक कुछ बदलाव आपके जीवन में नहीं आएंगे। Knowing him to an extent that he changes you. उसे इतनी ज्यादा उसे जानना कि वो आपको ही बदल देता है। You don't change by changing you. You change by knowing him. आप अपने आप को
अपने आप के द्वारा नहीं बदलते, आप अपने आप को उसको जानने के द्वारा बदलते See, हैं। that's why religion doesn't work. इसीलिए जो धर्म है वो काम नहीं करता, Because religion always focuses on you changing you, and it's very frustrating. क्योंकि जो धर्म है वो इस पर ध्यान देता है कि आपको खुद अपने आप को बदलना है और ज्यादा काम नहीं लाता। Stop eating, ये खाना बंद करो, don't do this, ये मत करो, do that, ये करो, do this, ये करो, don't do this. ये मत करो। So it's so much about yourself, and you do all of that and you get more frustrated. तो आप ये सब आपके बारे में और इतना आप करते कि आप खुद निराश हो जाते हैं। And sometimes people make Christianity also one of the religion. और कई बार लोग मसीहत को भी एक धर्म बना देते हैं। You don't change you by making yourself to change. आप अपने आप को नया, अपने आप को बदल कर नहीं बनाते, You change by going after Jesus. आप यीशु के पीछे जाने के द्वारा बदलते हैं। You know, everything about Jesus, everything in the kingdom is Jesus centered. राज्य में हर एक चीज यीशु के बारे में, हर एक चीज यीशु केंद्रित है। Even faith. विश्वास भी। Sometimes you can make faith about hear the word, कभी कभी आप वचन को सुनने के बारे में विश्वास कर सकते हैं। hear the word, वचन को सुनो, speak the word, वचन को बोलो, believe the word. वचन पे विश्वास रखो। All of that is good, but somehow you miss the Prince of Faith, who is Jesus. हाँ, ये सब ठीक है, पर आप उस विश्वास के राजकुमार जो यीशु मसीह, आप उससे छूट जाते हैं। So faith can be frustrating. तो विश्वास जो है वो निराशाजनक हो Because सकता है। if faith is only about principles, your faith is going to be very frustrating. क्योंकि अगर विश्वास सिर्फ और सिर्फ सिद्धांतों के बारे में है तो आपका विश्वास का जीवन निराशाजनक होगा। Person is more important than principles. व्यक्ति सिद्धांत से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। And so we're going to have a session on faith also. और हम विश्वास के ऊपर भी हमारा सत्र होगा एक, It's going to be good. और वो बहुत अच्छा होगा। You know, the Bible says when you get a revelation, place it on the lampstand so that everybody can see it. बाइबल कहते हैं जब आपको प्रकाश मिलता है तो उसे आप एक उच्च स्थान पर रखो, एक जहाँ पे रोशनी है, अब ताकि वो सब उसमें भाग ले पाए। Change doesn't come by changing yourself. बदलाव अपने आप को बदलने के द्वारा नहीं आता। Change comes by pursuing Jesus Christ. बदलाव यीशु के पीछे जाने के द्वारा आता है। सब बोलिए हालेलुया। हालेलुया। So it's not about you. ये आपके बारे में है ही नहीं। Why are you struggling so much? आप इतना संघर्ष क्यों कर रहे Why हैं? you're tormenting yourself? आप अपने आप को क्यों पीड़ा में डाल Why रहे are you हैं? troubling yourself? क्यों आप अपने आप को मुसीबत में डाल रहे Change हैं? doesn't come by tormenting yourself. बदलाव आपको खुद को पीड़ा लाने से नहीं होता। Change comes by Him. बदलाव उसके द्वारा आता है। You know, the more revelation that Jesus is giving me about Himself these days. इन दिनों में जितना यीशु मसीह अपने बारे में मुझे प्रकाशन दे रहा है, Because one of the prophetic words He said, there shall be a greater revelation of Jesus this season. और एक भविष्यवाणी का वाणी ये था कि इस मौसम में यीशु मसीह का एक अधिक और महान प्रकाशन होगा। As they looked at Him, the poison in their body was dematerialized. जैसे वो इजरायली उस पीतल के सांप को देख रहे थे कि उनका जो अंदर का विष है, जो जहर है, वो खत्म हो गया। सब बोलिए देखने में चंगाई है। देखने में चंगाई है। बाजू वाले को बोलिए प्लीज। देखने में चंगाई है। अभी आगे देख के बोलिए देखने में चंगाई है। देखने में चंगाई है। See, that's the gospel of grace. ये अनुग्रह का सुसमाचार है और ये फैलेगा। और ये फैलेगा। Amen. हालेलुया। देखने में चंगाई है। Amen. संघर्ष करने में चंगाई में नहीं है। किस में चंगाई है? देखने में चंगाई है। और हम क्या कर रहे हैं ये साल? हमारा देखना पवित्र आत्मा बेहतर कर रहा है। Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. You're going to see Him like you've never seen Him. आप उससे ऐसे तरह देखेंगे जैसे आपने पहले कभी ना देखा हो। John, the disciple John, प्रेरित यूहन्ना 3.5 years he has walked with Jesus. 3.5 साल वो यीशु के साथ चला। He has even rested on his chest. वो उसके सीने पर सिर रख के भी सोया है। But in the island of Patmos, पर पतमोस टापू पर in the spirit, आत्मा में he saw someone. उसने किसी को तो देखा। It doesn't look like that Jesus. ये वो उस यीशु की तरह नहीं दिख रहा था। He saw someone whose
eyes are fire. उसने ऐसे को देखा जिसकी इसकी आंखें आग में थी। He has many crowns on his head. उसका सिर मुकुटों से भरा था। When you are in the spirit, your revelation will hit the skies. जब आप आत्मा में आ जाते हैं तो आपका प्रकाशन मानो आकाश में पहुंच जाता है। Otherwise, you won't be able to see deep things about Jesus. You have to be in the spirit to know who Jesus is. नहीं तो आप यीशु के बारे में उतना गहराई से जान नहीं पाएंगे, गहरी बातों को जान नहीं पाएंगे जब तक आप आत्मा में नहीं हैं। You know, when John saw him, जब यूहन्ना ने उसे देखा, his face shining like the sun, उसका चेहरा सूर्य की तरह चमक रहा his था, hair white as wool, उसके बाल ऊन की तरह मुलायम थे, in his hands, right hand, 7 stars. उसके दाहिनी हाथ में 7 सितारे थे, He has worn a long robe. उसने बड़ा अंगरखा पहना था। And when he saw that, the Bible says, John was so weak, he fell down. और जब उसने देखा तो बाइबल कहती है कि यूहन्ना इतना कमजोर हो गया कि वो गिर पड़ा। And Jesus had to stretch out his hand, बोला खड़े हो जा. और यीशु को अपना हाथ आगे करके उसे खड़ा करना पड़ा, But he used his right hand. पर उसने अपना दाहिनी हाथ इस्तेमाल किया। The message is, he will always use his servants to strengthen you. तो इसका संदेश ये है कि वो हमेशा अपने दासों के द्वारा आपको सामर्थी बनाएगा। सब बोलिए hallelujah. हालेलुया। 3.5 years he walked with Jesus, but साढ़े- never saw him like this. 3.5 साल वो यीशु के साथ चला, पर उसने कभी भी यीशु को इस तरह नहीं देखा। आपका नजर बेहतर हो रहा है। आमेन, आप यीशु को ऐसा देखने वाले जैसे आपने पहले कभी नहीं देखा। आमेन, आमेन। Amen. Praise. And as you see him, grace is increased. और जैसे आप उसे देखेंगे अनुग्रह बढ़ेगा। You just look at him and grace begins to multiply. आप सिर्फ उसको निहारते हैं और वो अनुग्रह बहुगुणित होगा। That's the generation that's coming up. That's not going to be successful by effort and by this and by that. They're going to be successful by grace. They're going to fly by grace. They're going to run by grace. They're going to cross all limits by the grace of God. और एक ऐसी पीढ़ी आ रही है जो संघर्ष के द्वारा नहीं, अपने प्रयास के द्वारा नहीं, वरन अनुग्रह के द्वारा समृद्ध होगी। वो अनुग्रह के द्वारा भागेंगे, उड़ेंगे और उन सारी सीमाओं को पार करेंगे। And because it is by grace, we will do more than any other generation has ever और done. क्योंकि ये अनुग्रह के द्वारा है तो किसी और पीढ़ी से कई अधिक हम करेंगे। सब बोलिए hallelujah. हालेलुया। There is so much to do. बहुत कुछ है करने के लिए। And you say how we do it? और आप कहेंगे हम कैसे करेंगे? Just look. सिर्फ देखेंगे, Look at him. सिर्फ उसे देखेंगे। He is so beautiful. वो बहुत सुंदर है, He is so marvelous. वो बहुत अचंभनीय है। And in your looking of him, grace is released. और आपको उसको निहारने में ही वो अनुग्रह आपके ऊपर आजाद होगा। And the apostle Paul said, you know, there are many apostles, but I worked hard more than all the apostles. प्रेरित पौलुस ने कहा था कि बहुत सारे प्रेरित हैं पर सबसे ज्यादा अधिक काम मैंने किया है। You mean to say you work harder than Peter? आपका कहने का मतलब है कि आपने पतरस से भी अधिक काम किया है, You worked harder than John? आपने यूहन्ना से भी अधिक काम किया है। He said, no, not Peter and John. All the apostles से ज्यादा काम किया है. नहीं, सिर्फ पतरस और यूहन्ना को नहीं, सबको मिलाकर भी मैंने उनसे ज्यादा काम किया है। Grace is going to make you a hard worker. अनुग्रह आपको मेहनत करने वाला बनाएगा, It doesn't make you lazy. वो आपको आलसी नहीं बनाता। किसी बोला अनुग्रह इतना बड़ा 3 घंटा सोता था, अभी 6 घंटा सोता हूँ। ये अनुग्रह नहीं है, कुछ और मिला है आपको। जो भी मिला है फेंक दोगे, अच्छा नहीं है ये। That's not grace. Grace makes you a hard worker. अनुग्रह का अर्थ है कि आप कठिन मेहनत करने वाले हैं, You're on the move. आप हमेशा चलन पर होते You're हैं, burning for Jesus. आप यीशु के लिए जल रहे हैं, Because that grace is God's power that's working in you. क्योंकि वो परमेश्वर का सामर्थ, वो अनुग्रह आप में काम कर रहा है। Hallelujah. सब बोलिए hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। So Jesus said, let's go deeper, you will catch something. Go deeper. और यीशु कहता है कि गहरे में चल, तू वहां कुछ पकड़ेगा। So today I want to share with you one more part of the benefits of epignosis. और आज मैं आपके साथ एक और एक भाग बताऊंगा एपिग्नोसिस के लाभों के बारे में। I won't take much time. मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, Let's go. आगे जाएंगे। Now, spiritual maturity is not achieved by efforts or by time,
but is produced through the epignosis of Jesus Christ. आत्मिक परिपक्वता प्रयास या समय के द्वारा प्राप्त नहीं होता, बल्कि यीशु मसीह की एपिग्नोसिस के द्वारा उत्पन्न होता है। When you see someone who's been in church for a long time, you may think because this individual has been in church for a long time, then probably he is the most spiritually mature. अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा समय से कलीसिया में है तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये जो व्यक्ति है, क्योंकि कलीसिया में बहुत समय से है, ये बहुत परिपक्व होगा। Time doesn't give spiritual maturity. समय आत्मिक परिपक्वता को नहीं देता। Or you see in church, somebody is always running around. और आप देखते हैं कलीसिया में हर एक कोई तो व्यक्ति है जो यहाँ वहाँ भागता रहता है, Always running around. यहाँ वहाँ भागता रहता है, Always busy in activity. कुछ चीजों में वो हमेशा व्यस्त होता है। Then you may think, okay, because this guy is so busy in the activity, then this is spiritually mature, and that's not true. तो आपका ऐसा लग सकता है क्योंकि ये व्यक्ति वो इतना ज्यादा व्यस्त है इन चीजों को करने में, शायद ये आत्मिक परिपक्व हो, और ये ऐसा नहीं है। Spiritual maturity in the kingdom is not achieved by activity or by how many years you've been in faith. आत्मिक परिपक्वता राज्य में इस पर निर्भर नहीं होती कि आप कितने गतिविधियां, कितने कार्यों को करते हो, कितना समय से आप हो। Martha was running around a lot. मार्था जो थी बहुत यहाँ वहाँ भाग रही थी, And she was the same one who was blaming Jesus Christ. और वो वही स्त्री थी जो यीशु मसीह पर इल्जाम लगा रही थी। Just because we are doing too much activity for God doesn't mean we are spiritually mature. क्योंकि हम परमेश्वर के लिए बहुत ज्यादा कामों को करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम बहुत ज्यादा परिपक्व है। You know, generally if we see someone who is little loud, अगर हम देखेंगे कि आम तौर पर अगर हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत चिल्ला कर बात करता है, or his personality is a little loud, और उसकी जो व्यक्तिगत जो उसका चीज है वो बहुत ज्यादा ऊंचा है, and because of that personality lot of attention comes to that person, और उस व्यक्ति के पर्सनालिटी की वजह से बहुत सारे लोग आते हैं उसकी ओर, obviously it's an understanding, okay, this guy might be very mature, and it's not true. और ये आम तौर पर ये समझ हो सकती है कि हाँ ये व्यक्ति बहुत परिपक्व है, और ये सत्य नहीं। The loudest one is not necessarily the mature. जो सबसे आवाज करता है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो बहुत परिपक्व हो। Maybe the quietest one is the most mature. शायद से सबसे शांत रहने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा परिपक्व हो। But you see, different personalities that people have, they just think, okay, because this guy is running around all the time, then this is mature. It's not true. क्योंकि अलग अलग लोगों के व्यक्तित्व होते हैं, इसके द्वारा लोगों को लगता है कि हाँ ये व्यक्ति बहुत ज्यादा यहाँ करता है और ये परिपक्व हो, और ऐसा नहीं होता। Spiritual maturity is not achieved by effort or time, but it is patiently produced through a person's epignosis of Jesus Christ. आत्मिक परिपक्वता प्रयास या समय के द्वारा प्राप्त नहीं होती, बल्कि यीशु मसीह के एपिग्नोसिस के द्वारा, उसके एपिग्नोसिस के धीरज रखने के द्वारा उत्पन्न होती है। Next line. अगला स्लाइड। Spiritual maturity, इसको देखिए, spiritual maturity is the result of epignosis, not how much time you've been in church, not how much activity you do in church, not how many gifts you have, or how much word information you have. आत्मिक परिपक्वता एपिग्नोसिस से आती है, इसकी बदौलत नहीं कि आप कितने समय से कलीसिया में हैं, या आप कलीसिया में कितनी गतिविधियों को करते हैं, या आपके पास क्या वरदान है और क्या वचन की जानकारी है। Gifting does not mature a believer. वरदानों के द्वारा एक व्यक्ति परिपक्व नहीं होता। The Corinthian church had lot of gifts, कुरिन्थ की कलीसिया में बहुत ज्यादा वरदान थे, but they were immature group of believers. पर वो अपरिपक्व समूह था विश्वासियों का। Yeah, aparipakwa, right? So they would prophesy on the one hand, then on the other hand they would be very envious. वो एक हाथ पर तो वो भविष्यवाणी करते थे और दूसरे हाथ में वो बहुत ईर्ष्या रखते थे। The word of wisdom would work on them, and the other hand they would cause divisions. एक हाथ से वो परमेश्वर के वचन को बोलते थे और दूसरे हाथ से वो विभाजन लाते थे। Certain gifts would operate in them, and they would cause envy and strife.
कुछ वरदान उनमें काम करते थे और उस दूसरे हाथ में वो ईर्ष्या और विभाजन को लाते थे। Just because we have been in church for a longer time does not mean we are mature. क्योंकि हम कलीसिया में बहुत समय से है, इसका अर्थ ये नहीं कि हम परिपक्व है। Just because we are doing a lot of activity in church or we have some gifts or we know something about the word does not mean we are spiritually mature. क्योंकि हम बहुत ज्यादा गतिविधियां कलीसिया में करते हैं, हमारे पास कुछ वरदान है, या हम वचन के बारे में कुछ चीजों को जानते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम परिपक्व है। We may think that it is maturity. It's not. हम सोच सकते हैं कि परिपक्वता है, पर वो ऐसा नहीं है। You can know the word, but there will be no changes in your life. आप वचन को जान के रख सकते हैं और वो आपको बदलेगा नहीं। You can have a lot of gifts, but you refuse to forgive. आपके पास बहुत वरदान है, पर आप क्षमा नहीं करते। You can have so many gifts, yet your mouth is not right. आपके पास बहुत सारे वरदान है, फिर भी आपका मुंह ठीक नहीं। You have been in church for 40 years, yet you don't know how grace works. अब 40 साल से कलीसिया में आपको फिर भी नहीं पता कि अनुग्रह काम कैसे करता है। So maturity doesn't come by time, it is produced by the epignosis of Jesus Christ. तो परिपक्वता समय के द्वारा नहीं आती, वो यीशु मसीह के एपिग्नोसिस के द्वारा उत्पन्न होती है। How much you know Jesus. आप यीशु को कितना जानते हो, That is maturity. ये परिपक्वता है। It's not how long I've been in church. Now, me, I'm born in a family where from birth we have been going to church. और मैं जो हूँ वो मैं ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ है कि हम जन्म से हम कलीसिया जाते हैं। We've been going to church. हम जन्म से कलीसिया में जाते हैं। That doesn't make me spiritually mature. तो ये मुझे आत्मिक परिपक्व नहीं बनाता। Because spiritual maturity doesn't come by how much time you've been in church. क्योंकि आत्मिक परिपक्वता इसके ऊपर नहीं आती कि आप कितने समय से कलीसिया में हैं। It comes by how much do you know Jesus and how much of that Jesus is seen in your life. ये इस पर आधारित है कि कितना आप यीशु को जानते हैं और वो कितना जानना आपके जीवन में दिखता है। Because lot of wrong assumptions people have. If they've been in church for 20 years, they obviously feel like they are the most mature person, and that's not the truth. क्योंकि लोगों के बहुत गलत अनुमान है, वो ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं कलीसिया में बहुत समय से हूँ तो मैं बहुत ज्यादा परिपक्व हूँ। इसीलिए देखिए, I want to tell you, when you come to church, आपको जानना है कि आप क्यों आए हैं। Amen. क्योंकि अगर आपको पता नहीं कि आप क्यों आए हैं, छोटी सी चुनौती और आप सब कुछ छोड़ के पीछे चले जाएंगे वापस। You are in church for Jesus Christ. आप कलीसिया में यीशु मसीह के लिए हैं। You are here for that. आप यहाँ उसके लिए हैं। Because the only person that can keep you stable in these challenging times is Jesus Christ. क्योंकि इन चुनौती भरे समयों में एक ही व्यक्ति आपको स्थिर रख सकता है और वो है यीशु मसीह। It's not time. ये समय नहीं। You could be the oldest member, still be the most immature. आप इस कलीसिया में व्यस्त व्यक्ति हो सकते हैं और फिर भी आप बहुत अपरिपक्व हो सकते हैं। Not age, वय के अनुसार नहीं, but how much time you've been in the church. पर इसके ऊपर कि आप कितना समय से कलीसिया में हैं। How much you know Jesus. आप कितना यीशु को जानते हैं। See, I have a Bible college certificate. मेरे पास बाइबल कॉलेज का सर्टिफिकेट है And 2013, I'm a Rhema Nagpur graduate. और 2013 में मैंने रेमा नागपुर से मैं ग्रेजुएट हुआ। In my exams, I was the top 3. मैं अपनी परीक्षा में सबसे तीसरे नंबर पे आया। And in the award ceremony, I have lot of prize that I got. और जो अवार्ड मिलते हैं, पुरस्कार मिलते हैं, उसमें मुझे बहुत सारे पुरस्कार मिले। लेकिन अभी किधर है, I don't know. अब वो कहाँ है मुझे भी नहीं पता, But that doesn't make me mature. पर वो मुझे परिपक्व नहीं बनाता। I could put those medals here and just roam around. मेरे से mature और कोई नहीं. मैं उन सारे पुरस्कार को अपने गले में बांध कर यहाँ घूम सकता हूँ और कह Just सकता हूँ। because I have a Bible college degree, don't make me mature. क्योंकि मेरे पास बाइबल कॉलेज की डिग्री है, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं परिपक्व हूँ। I had so much during the prize distribution in Nagpur. I had so much awards that where I was sitting, it was all awards. और मेरे पास मुझे इतने पुरस्कार मिले नागपुर में कि जहां मैं बैठ रहा था मेरे इर्द गिर्द सारे पुरस्कार ही थे। But prize don't make you mature. पर पुरस्कार आपको परिपक्व नहीं बनाता। Certificates don't make you mature. प्रमाण पत्र आपको परिपक्व नहीं बनाते। 15 people clapping you don't make you mature. 15 लोग आपके लिए ताली बजाते हैं, वो आपको परिपक्व नहीं बनाता। What makes you mature? आपको परिपक्व क्या बनाता है? It's how much you know Him.
कि आप उसको कितना जानते हैं and how much of him is seen in you. और वो कितना आपके जीवन में दिखता है. You know, some people who have been in church for a longer time, जो लोग कई समय बहुत ज्यादा समय से है और कोई नया आके अगर कुछ बोले उनको, तो पहला बोले कितना साल हुआ ब्रदर आपको? बस दो हफ्ता, 10 साल से हूँ मैं यहाँ पे, मुझे सिखाएंगे आप. Instead of receiving what they are saying, they begin to judge. उनका सुधारण ग्रहण करने के बजाय वो उनको न्याय करते हैं उनका. That's the biggest proof. ये सबसे बड़ा प्रमाण है. आगे का नहीं बोलूंगा मैं. Praise God. What is spiritual maturity? आत्मिक परिपक्वता क्या है? कहाँ से आता है? Does it come from certificates? क्या यह प्रमाण पत्रों से आता है? Does it come from I've read the Bible 55 times? क्या इसके ऊपर आता है कि मैंने बाइबल को 50 बार पढ़ा है? Does it come? I have a gift. I have a preaching gift. मेरे पास प्रचार करने का एक वरदान है. Does it come from a gift? क्या वो वरदान से आता है? Is it gift? Because gift is a gift. It is not a salary. It's a gift. It's given. So if it's given, how can it be maturity? क्योंकि वरदान जो है वो एक वरदान है, वो दिया जाता है. अगर वो दिया गया है तो वो कैसे परिपक्वता है? Who is mature? कौन है परिपक्व? Because we have to be mature. क्योंकि हमको परिपक्व होना है. Because mature people, there is a different food waiting for you. क्योंकि जो परिपक्व लोग हैं उनके लिए एक अलग तरह का भोजन राह देख रहा है. Babies have different food. बालकों का एक अलग खाना होता है. Mature people, there is a food waiting for you. और जो परिपक्व लोग हैं उनके लिए एक अलग भोजन है उनके लिए And रखा हुआ. that food will empower you for greater assignments for the kingdom. और वो जो खाना है वो आपको सशक्त करेगा ताकि आपका राज्य के लिए बड़े कार्यभारों को करे. God wants laborers. परमेश्वर को चाहिए कि मजदूर हो. Lot of laborers he wants. बहुत ज्यादा मजदूरों की खोज करता है वो. Many laborers are babies. पर बहुत सारे मजदूर जो है वो बालक है. They are so he can't use them. तो वो उनको इस्तेमाल नहीं कर सकता. Because he wants to use people. क्योंकि वो उन लोगों का इस्तेमाल करना चाहता है. And he is waiting for maturity. और वो परिपक्वता की राह देखता है. And maturity comes through food. और परिपक्वता खाने के द्वारा आती है. And comes through the epignosis of Jesus Christ. वो यीशु मसीह के एपिग्नोसिस के द्वारा आती है. Amen. Amen. Yeah, that's who mature people are. It doesn't come by gift. ये ही वो परिपक्व लोग हैं, वरदान से नहीं आता. Some of the most carnal people are the gifted people. सबसे ज्यादा बालक विश्वासी वो है जिनका सबसे ज्यादा वरदान है. Some of the most counseling needed are by gifted people. बहुत ज्यादा जिनको सुधारने की जरूरत है वो सबसे ज्यादा वरदान वाले लोग ही है. Just because you've been in church for long doesn't mean you're mature, because maturity doesn't come by time. क्योंकि आप कलीसिया में बहुत समय से है इसका अर्थ ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा परिपक्व है, क्योंकि परिपक्वता जो है वो समय के द्वारा नहीं आती. It's a result of epignosis. ये एपिग्नोसिस का प्रमाण है. How much do I know him? मैं यीशु मसीह को कितना जानता हूँ. मतलब personally, not to tell somebody else. How much do I know him? किसी को बताने के लिए, पर मैं व्यक्तिगत खुद के लिए उसे कितना जानता हूँ. क्या मेरे शब्द बदल रहे हैं? क्या मेरे शब्द बदल रहे हैं? क्या मेरे शब्द बदल रहे हैं? क्या मेरा व्यवहार बदल रहा है? क्या मेरी महत्वाकांक्षाओं में बदलाव है कि नहीं है? और वो अगर नहीं है, वो बदलाव अगर दिख नहीं रहा है, वो इसीलिए है क्योंकि यीशु का प्रकाशन नहीं है. When you have a revelation of Jesus, it changes you. जब आपके पास यीशु मसीह का एक प्रकाशन होता है तो वो आपको बदल देता है. Ephesians 4:11. Very इफिसियों quickly. 4 का 11. We can have Brother Abhishek come and play Ephesians 4:11. इफिसियों 4 का 11. And he gave some apostles, some prophets, some evangelists, pastors and teachers. और उसने कितनों को भविष्यवक्ता, सुसमाचार प्रचार करने वाले और उपदेशक नियुक्त किया. Next. Why? अगला वचन. For the क्यों? perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए. I hear this. Don't mistake ministry for maturity. और मैंने सुना कि आप सेवकाई को आप परिपक्वता के साथ आप मिलान बना ले. Just because some people are in ministry doesn't make them spiritually mature. क्योंकि कुछ लोग सेवकाई कर रहे हैं इसका अर्थ ये नहीं कि वो परिपक्व है. And it doesn't matter what our title is. और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हमारा पद क्या है. Spiritual maturity comes by how much you know Jesus.
आत्मिक परिपक्वता इससे आती है कि आप यीशु को कितना जानते हो। All other factors are not important. और जो दूसरी चीज है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। What's my title? मेरा पद क्या है, How many years I've been in church? कितना समय से मैं How कलीसिया में many हूँ, times I read the Bible? कितनी बार मैंने बाइबल पढ़ा है, What is my degree? मेरी डिग्री क्या है, Irrelevant. ये कुछ मायने नहीं रखता। Maturity is measured by how much you know Jesus and how much Jesus is seen in you. परिपक्वता इस बात पर निर्भर होती है कि आप यीशु को कितना जानते हैं और यीशु आप में कितना दिखता है। Verse 13. वचन 13। See, इसको देखिए. Till we all come, till the entire body of Christ comes in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. हिंदी में देखिए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास में और परमेश्वर की पुत्र की पहचान या एपिग्नोसिस, परमेश्वर के पुत्र की एपिग्नोसिस में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए। मतलब सिद्धता परमेश्वर के पुत्र के एपिग्नोसिस से आती है। It doesn't come by gift. ये वरदान के द्वारा नहीं आती। Till we come to the knowledge of the Son of God. कि जब तक हम परमेश्वर की पहचान, पुत्र की पहचान तक ना आ जाए। To a perfect man unto the measure of the stature of the fullness of एक Christ. सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे ढील ढोल तक ना बढ़ जाए। The more you look at him जितना आप उसे देखेंगे and you see his, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर ये यीशु है तो यीशु को आप चारों दिशाओं से आप देख रहे हैं। You are so much in love with him. You don't bother what anybody is telling you. कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है. You are so much in love with this man. आप इतना इस व्यक्ति के साथ प्रेम में हैं। You open your Bible अपने बाइबल को खोलते हैं and you look at him आप उसे देखते हैं from every angle. हर एक कोने से देखते हैं You look at him from every angle. आप उसे हर एक दिशा से देखते हैं And the more you look at him, the जितना आप more उसे he देखते हैं transforms you. और उतना वो आपको बदल देता है। The more you look at him, the more he transforms you. जितना आप उसे देखते हैं उतना वो आपको बदल देता The है। more you look at him, you are healed. जितना आप उसे देखते हैं आप उतने चंगे हो जाते The हैं। more you look at him, you prosper. जितना आप उसे देखते हैं आप उतने समृद्ध हो जाते And the हैं। more you look at him, grace is released to और you. जितना आप उसे देखते हैं उतना अनुग्रह आपकी ओर रिहा हो जाता है। And this person, even though he is very quiet, is very mature. और ये व्यक्ति भले बहुत शांत क्यों ना हो, बहुत ज्यादा परिपक्व है। He is mature. और वो परिपक्व है Because it's the knowledge of the Son of God that makes a believer mature. क्योंकि परमेश्वर की पुत्र की एपिग्नोसिस है जो एक व्यक्ति को परिपक्व बनाता है। Let's go to the last slide. हम लास्ट स्लाइड में The जाएंगे। point, yeah. इसके Last point. पहले, before that, there's one more point, I think. Yeah. Where epignosis is lacking, believers remain spiritual children, tossed to and fro by circumstances, wrong teachings, and external influences. जहां एपिग्नोसिस की कमी होती है वहां विश्वासी आत्मिक बालक बने रहते हैं। परिस्थितियां, गलत शिक्षाएं और बाहरी प्रभाव से वो इधर उधर डोलते हैं। Anything can shake them. कुछ भी उन्हें हिला सकता है। Any comment can shake them. कोई भी सुझाव उन्हें हिला सकता है। Any wrong teaching, like a wind, will drive them to any direction. एक गलत शिक्षा हवा के मानो उन्हें कहीं भी किसी भी दिशा में लेकर जा सकती है। External influences can influence them. बाहरी प्रभाव उन पर प्रभाव डाल सकते हैं। You know, sometimes we have to be so careful about our children, because you know why? Because they can eat anything. कभी-कभी हमें अपने बच्चों के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता है। पता है क्यों? क्योंकि वो कुछ भी खाते हैं। Anything on the floor they'll eat. कुछ भी जो जमीन पे पड़ा होता है खा लेते So हैं। parents have to be very careful that they don't eat something that is harmful for them. तो माता पिता को बहुत ध्यान देना पड़ता है कि वो कुछ ऐसा ना खाए जो उनके लिए हानिकारक हो। Somebody said, I am a child because I've come to church only for 2 weeks. और कोई कह सकता है कि मैं एक बालक हूँ क्योंकि मैं कलीसिया में से 2 हफ्तों से आ रहा हूँ। Pastor, I'm a child because I don't have gift like this brother. I don't have any gift. और कोई व्यक्ति कह सकता है कि इस भाई की तरह मेरे पास वरदान है ही नहीं। Gifts don't mature you.
वरदान आपको परिपक्व नहीं करते, Time don't mature you. समय आपको परिपक्व नहीं बनाता। It's your passion to know Jesus. ये आपका यीशु मसीह को जानने में जो जुनून है वो आपको परिपक्व बनाता You है। have the Holy Spirit आपके पास पवित्र आत्मा है, and you have the Word. आपका वचन भी है, And you say, Lord, I want to know you. और आप कहते हैं प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूँ। And if that's your desire, अगर वो आपकी इच्छा है, the Holy Spirit will give it to you. पवित्र आत्मा आपको देगा। हर जगह आपको यीशु ही दिखेगा। आमेन। Because see, तेल वहीं पर बहता है जहां पर कटोरा है, जहां पर मांग है। अगर आप मांग कर रहे हैं कि मुझे यीशु चाहिए, तो हर दिन आपको यीशु ही मिलेगा। That is my I want Jesus. मुझे यीशु चाहिए। प्रभु ये प्रचार, ये जूम मीटिंग पास्टर ले रहे हैं, मुझे इसमें सिर्फ यीशु ही देखेंगे आप। You will only see Jesus. आप सिर्फ यीशु को देखेंगे। लॉर्ड मैं पढ़ रहा हूँ, यूहन्ना की किताब पढ़ रहा हूँ, मेरे को यीशु ही चाहिए इसमें। I want, and you'll only see him. और You'll only सिर्फ see आप उसे Jesus. देखेंगे। और because he will show it to you. क्योंकि आपको दिखाएगा वो। He said, look at Jesus like this. वो कहता है यीशु को तुम इस तरह देखो, Look at his move. उसके चलन को देखो, Look at the way he talks. उसको देखो कैसे बात करता है। Oh, you will be so much in love with him. आप उसके साथ इतने ज्यादा प्रेम में आ जाएंगे। And the more Holy Spirit reveals Jesus, the more your change will be genuine. और जितना पवित्र आत्मा आपको यीशु मसीह को दिखाएगा, उतना आपका बदलाव असली होगा। I was telling someone, I said, you know, ministry and all, keep it outside the door. मैंने किसी को तो कहा कि सेवकाई जो है सब दरवाजे के बाहर रखो। I'm very tough with ministers, आपके साथ नहीं। मैं जो सेवक है उनके साथ बहुत कठोर हूँ उनके साथ। Especially if you're a minister under me, I will not spare you. अगर आप मेरे अधीन आप कोई सेवक है तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। I said, ministry सब keep it out. मैंने कहा कि जो सेवक है वो सब बाहर रखो। Study Jesus. यीशु को अध्ययन करो, Know him. उसे जानो। Ministry and all सब बाद में। सेवकाई सब बाद में आता है। I was telling certain things, I don't want to share it with you. मैं कुछ चीजें आपके साथ बांटना नहीं चाहता। But I said, you know, look at him, man. Ministry and all we'll do later. Let's look at Jesus. मैंने उनसे कहा कि सिर्फ यीशु को देखो, हम सेवकाई वो सब बाद में करते रहेंगे, हम यीशु को देखो। Be content. Let ministry flow out of your satisfaction. और आप तृप्त हो जाओ और आपका सेवकाई जो है वो आपके संतुष्टि से बाहर आए। Let ministry flow out of the overflow of your spirit. और आपकी सेवकाई आपके आत्मा के उबड़ने के द्वारा बाहर आए। I said, look at him. मैंने कहा कि उसको देखो, Love him. उससे प्रेम करो, Observe him. उसको देखो हर जगह He's से। such a beauty. वो इतना सुंदर है, There is no one in the planet more beautiful than him. इस पूरे विश्व भर में उससे अधिक सुंदर कोई है ही नहीं। He is called the Ancient of Days. उसे हम दिनों का प्राचीन कहते हैं। He is called the Ancient of Days. उसे हम दिनों का प्राचीन कहते हैं। सालों से लोग उसे निहारते आ रहे हैं और अब तक निहारना बंद नहीं हुआ है। आमीन। अभी हम 1989 में जन्म लेके 5 साल निहार के आपको मिल जाएगा सब कुछ। सालों से लोग उसे निहारते आ रहे हैं, सालों से। वो प्राचीन के दिनों को सालों से लोग निहारते आ रहे हैं। 1989, 80 में, 70 में, 60 में आपका जन्म हुआ, आप आए हैं इस धरती पे, और हमारा भी काम यीशु मसीह की तरफ हम देख रहे हैं और उसको देखने में अनुग्रह आपके ऊपर आजाद होता है। आमीन। Grace is released, and through that grace you produce tangible results. और इन अनुग्रह के द्वारा आप स्पर्श करने वाले परिणामों को आप लेते हैं। Big results. बड़े प्रमाण। Hallelujah. हालेलुया। So I say this and we'll pray now. हम एक प्रार्थना करेंगे हम। Whenever you come to church, जब भी आप कलीसिया में आए, or you're in Zoom meeting, या आप जूम मीटिंग में हैं, or morning prayer, या आप सुबह की प्रार्थना में or हैं, you're reading your Bible, या आप अपने बाइबल को पढ़ रहे or हैं, you're telling someone about Jesus, या आप किसी को यीशु के बारे में बता रहे हैं, tell the Holy Spirit, आप पवित्र आत्मा से कहिए, I want Jesus. मुझे यीशु चाहिए। Short prayer. छोटी प्रार्थना, I want to see Jesus. मुझे यीशु मसीह को देखना है। When I read, I want Jesus. मैं अगर वचन पढ़ रहा हूँ तो मुझे यीशु को देखना है। इधर उधर नहीं, I want Jesus. मुझे यीशु को देखना है। Give me Jesus. मुझे यीशु को देखना है। And if you pray right, the answers will be there. और अगर आप सही तरीके से प्रार्थना करेंगे तो आपको सही परिणाम मिलेंगे, You will get the answers. आपको उत्तर मिलेंगे। And so much, you know, the Lord told me
The Lord told me, प्रभु ने मुझसे कहा this season there is unusual grace being released. और उसने कहा कि इस मौसम में असामान्य अनुग्रह आजाद होगा, which will cause us to have unprecedented accomplishments. और वो हमें अभूतपूर्व उपलब्धियां प्राप्त करने में मदद करेगा। Holy Spirit, show me Jesus. पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह को दिखा। Morning prayer, show me Jesus. सुबह की प्रार्थना मुझे यीशु मसीह को दिखा। Coming to church today, I want to see Jesus. आज मैं कलीसिया से आ रहा हूँ, मुझे यीशु मसीह को देखना है। While you're eating food, जब आप खाना खा रहे हैं, प्रेयर करने बैठे हैं, बोलिए प्रभु मुझे यीशु देखना है। और आप खाना खाते समय आप प्रार्थना करते हो, आप कहेंगे कि मुझे यीशु को देखना है। मतलब you are so much in that prayer that in every prayer you're saying I want Jesus. आप इतना ज्यादा उस प्रार्थना में लगे हैं कि आप हर चीज में आप यीशु को देखना चाहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Please stand everyone. आइए हम सब खड़े हो जाएं। Thank you Lord. Let's worship God for a moment. आइए हम कुछ क्षण परमेश्वर की आराधना करें।